Okay, so we had a discussion on the following question paper, that is May 17, and today we are going to have a discussion on May 16. Okay. Even I don't have pen tablet today, so that I can do calculation on that part. So you people are going to help me, okay? And you please lowers using single word actually. Let me use other also. Put in clear it. Just give me a second. Okay. I think voice is clear now. Okay. Please let me know. Yes, sir. Okay. So let us start with the session. Okay. So in May 16, question number 4A, the question was given in quite different way. You can see find AWT, ATAT, ART, and AWTAT. So we don't have to bother about ART and AWTAT. It is quite old syllabus. So हो सकता है because book के अंदर भी और syllabus में भी ऐसे कुछ वो नहीं हो तो हो भी सकता है calculation का कुछ हो but we don't have that. So we are bothered about the AWT and ATAT. Okay. So we have to calculate AWT and ATAT for the following set of processes with CPU burst time in millisecond. We also know that. Assume that the processes arrives at time zero. Arrival time they have given like zero. P1, P2, P3. Only three are there. Okay. So let me take it. P1 19. I'll be taking the processes. So these are the processes. Okay, this is the burst time. Okay, तीन है तीनों आपके सेंटर में ले लेते हैं. So process आपका P1, then P2 and your P3. Okay, the burst time is 19 and 7 and 3. Okay, 7 and 3. Okay, so these are the processes. Process. Okay, so these are the processes, and this is the burst time which has been given to us. Now, what they are asking, we have to do this particular problem. FCF is with order P2, P3 and P1 and round robin with time quantum of 2 milliseconds. देखो बहुत सिंपल वाला क्वेश्चन है and it has asked for 10 marks. यहाँ पर ना ही कुछ प्रायोरिटी का टेंशन है और ना ही किसी दूसरी चीज का टेंशन है. चलो इसको सॉल्व करते हैं फटाफट, जल्दी से सॉल्व हो जाएगा. विल स्टार्ट फर्स्ट विथ यूजिंग द FCFS. ठीक है, FCFS. ओके, विल ट्राई टू मेक द Gantt chart. Okay, and always consider that in FCF if anything is not given, then you have to consider it in the non-preemptive version only. Okay, so FCF is with the non-preemptive version P2, P3 and P1. This is the arrival. Okay, we have to consider this arrival time P2, P3, P1. So I will write it down. P2, P3, P1. This is the arrival. Okay, arrival order I can say. तो यहाँ पर मैं इनका गैंट चार्ट बनाता हूँ. ठीक है, अब गैंट चार्ट बनाने में यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ जीरो से. ओके, who will come first? Your P2. Your P2 has arrived first. Okay, so according to it, your P2 will execute. So P2 Vaisa will come for execution and P2 is having around 7 millisecond of burst time. So maybe इतना हो जाएगा. चलो इतना मैंने दे दिया. The time becomes 7. The timeline में 7 हो गया 0 से लेकर 7 तक. After that, the arrival of P3 will be there. So it requires only 3 milliseconds. So P3 will come. P3 will arrive. Okay, and it will execute for only 3 milliseconds. 7 plus 3 becomes 10. Okay,
Now we have P1 arrival. Okay, so P1 we have to take P1 and then we have to execute it for like ये हुआ आपका P1 एग्जीक्यूशन और ये हमारा टाइमिंग हुआ 10 + 19 हाउ मच 10 20 29 सो इट बिकम्स 29 ठीक है सो यहाँ पे आपका P2 will complete its execution P3 will complete P1 will complete meanwhile you can calculate the average waiting time चलो एक काम करते हैं यहीं पर कैलकुलेट कर लेते हैं so waiting time okay so waiting time for P1. How much time your P1 has waited? You know, it was already mentioned that okay, all the processes arrived at 0 millisecond, time zero. Okay, so it is easy for us to understand कि भाई जब आपका P1, P2, P3, P2, P1, P2, P3 has arrived on time zero, but उनका order ये है, execution का order उनका ये है. Okay, so अब कैलकुलेट करो जरा मुझे बताओ P1 ने कितना वेट किया है V2 ने सॉरी P1 ने 10 मिली सेकेंड वेट किया है P2 ने कितना वेट किया है बोलो 0 मिली सेकेंड वेट किया है वेरी गुड एंड हाउ मच P3 हैज वेटेड 7 मिली सेकेंड राइट 7 मिली सेकेंड ओके सो दिस इज डन नाउ एंड टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करते हैं सो द टर्न अराउंड टाइम फॉर P1 इज लाइक P1 has waited for 10 millisecond, okay, and executed for 19 millisecond. So it becomes how much? Total turnaround time becomes 29. Okay, so P2 has waited for 0 millisecond and executed for 7 millisecond. So becomes 7 millisecond total. That is total sorry turnaround time. Okay, and P3 has waited for 7 millisecond and executed for 3 milliseconds. So becomes 10 milliseconds of turnaround time. Okay, so here only you will calculate the average waiting time that it becomes 5.6. Okay, so 5.6 will be the average waiting time. Okay, उसके बाद में टर्न अराउंड टाइम आप फाइंड आउट करेंगे तो यहीं से मैं कर लेता हूँ एक्सेल शीट है इट बिकम 15.3 ओके तो 15.3 मिलीसेकंड ओके you need to mention ms that is in millisecond क्योंकि यहाँ पर इसने क्लियरली मेंशन किया है all the हाँ in millisecond यहाँ पर मेंशन किया है when they have mentioned it like that so you need to mention in the answers also ठीक है तो आप इसको मेंशन करेंगे तो यहाँ पर भी आप लोग को 5.6 मिली सेकेंड और फिर यहाँ पर भी 15.3 मिली सेकेंड ओके तो ये हमारे दो आंसर्स हो गए ये आपका पहला आंसर हो गया इसके बाद में आते हैं अभी एफसीएफएस के अलावा आपके सेकंड क्या बोला उसने करने के लिए अरे बताओ क्या बोला करने के लिए राउंड रॉबिन ओके अब राउंड रॉबिन के अंदर कितना यहाँ पर स्विचिंग होने वाली है बिकॉज द टाइम क्वांटम दे हैव टेकन इज ओनली 2 मिली we had a discussion about this time quantum also that time quantum जितना ज्यादा होगा okay higher the time quantum low less number of switching will be done okay and less number of time quantum in a lower the value of the time quantum then higher the number of switching okay so वैसे ही यहाँ पर होने वाला है कुछ let us start with the uh, round robin okay so ये हमारे राउंड रॉबिन साथ स्टार्ट करते हैं विद दिस गैन चार्ट विल स्टार्ट विद टाइम जीरो ओके सो चलो अच्छा द ऑर्डर विल फॉलो द सेम ऑर्डर ना P2 P3 P1 प्लीज टेल मी वी आर गोइंग टू फॉलो द सेम ऑर्डर एक बोलता है नो एक बोलता है यस बोलो जल्दी बोलो मुझे राइट आंसर बताओ फटाफट we'll have to follow the same order what was mentioned in the HCFS in the first section that we have to follow the order of P2, P3 and P1. अरे बोलो जल्दी अल्फिया सिकरा फरहान P1 मतलब P1 क्या स्टार्ट
Just tell me that only we either we have to follow the same order of SCFS or we need to start it from the P1, P2, P3 like that. Okay, चलो मैं बताता हूँ. P1, P2, P3. Okay, very good. So basically the order which was given P2, P3, P1, it was very good, Fiza. So the order which was given P2, P3 and P1, it was only for FCFS. Okay, it was not for round robin because they have clearly mentioned. अगर एक ही statement में होता है तो चलो हम लोग उसको consider कर भी सकते थे. But यहाँ पर they have mentioned it for the FCFS only. Okay, so we have to follow that order only to solve the SCFS using SCFS. Okay, but for round robin, we'll follow the same order, that is P1, P2, P3. Okay, so when we follow the order P1, P2, P3, so start with the P1, P2, P3. So first P1 will come. So P1 by itself will come. I'll make it like I'll put it in the center. Okay, so I will start with the P1. The time quantum is 2 millisecond, right? The time quantum is 2 millisecond. The time only 2 millisecond will be given to P1. Okay, then your P2 will come. Meanwhile, just calculate the average waiting time and average turnaround time. मेरे ये होने तक आप लोग का कैलकुलेट हो जाना चाहिए. तो उसको जस्ट ड्रॉ करो फटाफट. आपको तो पता है कैसे करना है. तो अगेन 2 मिलीसेकंड. तो 2 2 हो गया आपका 4. Your P3 will come. Okay, P1, P2, P3, then P1, P2, P3, then P1, P2, P3. चलो हम लोग एक बार टेस्ट कर लेते हैं. Your 2 millisecond has done. 4, then 6. P1 वापस से आया. How much P1 is required? 19 millisecond. तो बहुत लंबी कहानी चलने वाली. So again it requires 2, that it becomes 8. Okay. P2 requires how much? 7. तो 2 हुआ है ऑलरेडी P2 का. तो अब और 2 होगा तो हो जाएगा 4. ठीक है. तो अगर उसका अगर आपको ध्यान रखना है तो उसके लिए आप उसको कहीं पर मेंशन कर देने का, कहीं पर ऐसे लिख के रखने का. सो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू रिमेम्बर. P1, P2, P3 को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ. ठीक है. Okay, so P1 has completed 2 millisecond, P2 has completed 2 millisecond, P2 or P3 has also done 3. Okay, उसके बाद में इन द सेकंड फेज. ओके, चलो मैं इसको मेंशन कर देता हूँ थोड़ा से अलग फेज के अंदर. ये आपका सेकंड इटरेशन है, सेकंड साइकिल है. ये आपका सेकंड साइकिल, ये आपका थर्ड साइकिल. जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग. ओके, ऐसे ऐसे कुछ होता नहीं है, लेकिन उसको मैं खाली अंडरस्टैंडिंग के लिए कर रहा हूँ. ये हो गया. ये राउंड रॉबिन में आपको बहुत काम करना पड़ता है. 12, 14, 16, 18 और 20. चलो पहले यहाँ तक करके देखते हैं. सो P1 हैज कंप्लीटेड. नो. P2 हैज कंप्लीटेड. स्टिल नो. P3 P3 का कितना आया था? P3 का तो आपका हो गया ना भाई साहब. P3 तो सेकंड साइकिल में उड़ गए. ठीक है, तो यहाँ पर चेंजेस आने वाले हैं. ठीक है, देखो इसके लिए बोलते हैं ऊपर पूरा बनाने का लिए. हाँ, तो P1, P2 has done now. In the second cycle, when P3 will come, it will execute for only 1 millisecond. It will execute for only 1 millisecond because it is only 1 millisecond is remaining. Okay, so we don't require 2 millisecond if it is remaining for only 1 millisecond. So दो मिलीसेकंड लेके मैं टाइम वेस्ट क्यों करूँ? ओके, वैसे तो हमारा टाइम एक एक टाइम कीमती है. So we'll be taking your P3 will be executing for only 1 millisecond. ठीक है, so the 10 becomes 11 here. Okay, so P3 has came for execution. Now P3 is done. So I'll mark your P3 as a red one. ठीक है, so ये भाई साहब आपके निकल लिए. P3 has completed its execution. Now P3 will. अब देखो हमको कलर कॉम्बिनेशन का कुछ काम नहीं, तो मैं एक काम करता हूँ, कलर यहाँ से हटा देता हूँ. सिर्फ P3 को मैं मार्क करता हूँ because P3 has completed its execution. Okay. Okay. Now after P3 who will come? Again your P1 will come. So I will write P1 because P1 तो बहुत लंबा जाने वाला है. उसको आपस हम लोग ने 2 मिलीसेकंड देंगे and 11 becomes 13. Okay. Your P2, how much your P2 is required? देखो P2 का कितना हुआ है? P2 2 मिलीसेकंड. P2 2 मिलीसेकंड 4. Then again P2 2 मिलीसेकंड कितना हो जाएगा? 6. So P2 will come. आगे चल के उसको 1 ही मिलीसेकंड लगने वाला है, ध्यान रखना. अब P3 तो है नहीं, ये P3 तो आउट हो चुका है. ठीक है, so again your P1 will come. P1 will come and execute for 2 millisecond. ठीक है, 13 plus 2 15, it becomes 17. Again your P2 will come and P2 will come and execute for only 1 millisecond as it is required only 7 millisecond. ठीक है, तो यहाँ पर देखो P2 requires how much?
P2 2 मिली सेकेंड, P2 2 मिली सेकेंड, P2 2 मिली सेकेंड, टोटल हो गया 6। एंड अगेन यहाँ पर आपका P2 will come and it will execute for only 1 millisecond as it required only 7 millisecond of burst time, ठीक है। सो 7 मिलीसेकेंड की वजह से यहाँ पर आपका ये ओनली 1 मिलीसेकेंड रन हुआ और ये हो गया 18। ओके, so P2 has also completed its execution and will come out of the जो भी आपका रनिंग स्टेट से बाहर आ जाएगा। ओके, देन नाउ आपका ओनली वन प्रोसेस इज रिमेनिंग। ओके, हु इज रिमेनिंग राइट नाउ, दैट इज P1 इज रिमेनिंग। सो P1 इज स्टिल रिक्वायर्ड हाउ मच टाइम, चलो बताओ जल्दी से मुझे, P1 को अभी भी कितना चाहिए, P1 को अभी भी कितना चाहिए, अरे बोलो, मैसेज नहीं देख रहा हूँ आप लोग के। 11। ओके, P1 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 P1, 2 4s are 8। ओके, 8 हुआ है अभी, स्टिल 11 चाहिए। तो चलो हम लोग डायरेक्ट लेके जाते हैं। 11 प्लस 18 कितना हो गया, 29। ओके ओके, सो योर P1 हैज आल्सो कंप्लीटेड इट्स एग्जीक्यूशन, इसको मैंने मार्क कर दिया, ठीक है, बिकॉज और कोई तो प्रोसेस आपका है नहीं, ठीक है। तो ये बन गया आपका राउंड रॉबिन विद टाइम क्वांटम इज इक्वल टू 2 मिलीसेकेंड, यू हैव टू मेंशन इट लाइक दैट। ओके, तो ये हो गया आपका गैंट चार्ट बन गया। ओके, अब नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द एवरेज वेटिंग टाइम एंड एवरेज टर्न अराउंड टाइम। So this is what it was for FCFS. So let me mention this FCFS. Okay, now I need to calculate it for round robin, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा मार्क कर देता हूँ जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ओके, नाउ वेटिंग टाइम, चलो कैलकुलेट करते हैं। वेटिंग टाइम एंड टर्न अराउंड टाइम, TAT, ठीक है, TAT। ओके, सो आप में से अगर किसी ने कैलकुलेट किया, चलो यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करते हैं। सो हाउ मच टाइम योर P1 हैज वेटेड फॉर। ओके, हाउ मच योर P1 हैज वेटेड, योर P1 हैज वेटेड फॉर 0 मिलीसेकेंड। देखो आपको कैलकुलेट कैसे करना पड़ेगा इसको, 0 मिलीसेकेंड वेट किया, फिर 6 मिलीसेकेंड वेट किया, ठीक है। बट यहाँ पे तो 2 आपका रन हुआ है, तो इसको आपको कैलकुलेट ऐसे करना पड़ेगा, मेरे पास में कुछ लिखने के लिए नहीं है, मैंने आपको बताता हूँ। तो 0 मिलीसेकेंड वेट किया सब, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल कंसीडर फॉर P1। ओके, आपको ऐसे कैलकुलेट करना है, पहले P1 के लिए देखेंगे, ठीक है। सो P1 हैज वेटेड फॉर द फर्स्ट साइकिल ऑफ P1 वेटेड फॉर 0 मिलीसेकेंड फर्स्ट। ओके, तो 0 प्लस P1 और कहाँ पर है, यहाँ पर है P1, ठीक है, जो आई एम मार्किंग इट। ओके, सो P1 वेटेड फॉर 6 मिलीसेकेंड, बट माइनस क्या करना पड़ेगा, अरे बोलो माइनस क्या करना पड़ेगा, -2 करना पड़ेगा, ठीक है। तो बिकॉज यहाँ पर P1 एग्जीक्यूट हुआ है, ठीक है, तो 6 - 2, यहाँ पर उसको आपको लिखना ऐसा पड़ेगा, 0 प्लस, ये आपका हो जाएगा 6 - 2। ओके, बाहर आने के बाद में वापस से प्लस, और ठीक है, आपको कैलकुलेट करना है फॉर P1 के लिए, तो 0 प्लस 6 - 2 हो गया। उसके बाद में फिर P1 और कहाँ पर आएगा, यहाँ पर P1, ठीक है। सो अगेन P1 हैज वेटेड फॉर हाउ मच, 11। ओके, सो 11 - 2, 11 - 2, 11 - 2, तो 2 और कितना हो गया, 4, 11 - 4 कितना हो गया, ऐसे आएगा ना आपको। अरे बोलो जल्दी से, 11 माइनस कितना आएगा, इसके लिए बोल रहा हूँ, ये कैलकुलेशन जब आप लोग करेंगे ना, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए सिंपल होते जाएगा। 11 - 8 क्यों, सी, आपका P1 यहाँ पर आया। ओके, आपके P1 यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, तो पहले आपने यहाँ का कैलकुलेट कर लिया, चलो इसको मैं थोड़ा सा एक अलग मार्क करता हूँ, तो आपको थोड़ा सा और क्लियर होगा। नो फिल, P1 को मैंने मार्क कर दिया ये ब्लू कलर से, ठीक है, P1 को मार्क किया ब्लू कलर से, P1 को मार्क किया ब्लू कलर से,
P1 को मार्क किया ब्लू कलर से और P1 को मार्क किया ब्लू कलर से, ठीक है। अभी देखो ब्लू आपके सामने है, ठीक है। अब आपको कैलकुलेट करना है, ध्यान से कैलकुलेट करना है। सबसे पहले P1 आपका फर्स्ट साइकिल, ओके। इन फर्स्ट साइकिल इट वेटेड फॉर 0 मिली सेकेंड, सो आई जस्ट केप्ट इट लाइक 0, ठीक है। इन सेकेंड साइकिल, in second cycle your P1 waited for 6 millisecond, but minus क्या करना पड़ेगा 2, because your P1 has executed for this 2 millisecond, so waited for 4 millisecond, okay। so 6 minus 2, okay, so it becomes 4, so 6 minus 2 मैंने लिखा उसको। now come to this third cycle, that is P1, okay। how much time it has waited? 11 millisecond, okay। so 11 millisecond minus ये 2 millisecond, देखो ये आपका 2 millisecond है और ये आपका 2 millisecond है, ठीक है। तो ये 2 और 2 कितना अगर माइनस करते हैं तो कितना वेट किए? 11 माइनस, अब बोलो कितना आएगा 11 माइनस? अरे बोलो ना, 4। तो आप लोग जो एक्चुअली 8 बोल रहे थे ना, तो इसके लिए मुझे थोड़ा वो आया कि आप लोग कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। सो 11 माइनस 4, तो यहाँ पर आपका आ गया 11 माइनस 4, ओके। अगेन प्लस आगे और भी साइकिल है हमारे P1 के, ठीक है। सो ये हो गया 11। अब ये वाला साइकिल, द फोर्थ साइकिल ऑफ फॉर P1, ओके। हाउ मच टाइम इट हैज वेटेड? 15 मिली सेकेंड, ठीक है। बट 15 माइनस 2, 15 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2, तो 15 माइनस कितना करना पड़ा मुझे? 15 माइनस, बोलो जल्दी से, 15 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2, अरे 8 कहाँ से आया? 6 ना, हाँ 8 कहाँ से आया भाई? ऐसा ऐसा मत करो आप लोग, हाँ। तो ये हो गया आपका 15 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2, ओके। तो माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 ये हो गया आपका -6, तो इन शॉर्ट में इसको -6 लिखा, ऐसे आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब ये हो गया। नाउ यू हैव लास्ट P1, द फिफ्थ साइकिल फॉर P1, बिकॉज P1 का बर्स्ट टाइम काफी बड़ा था, इट वाज अराउंड 19 मिलीसेकंड, ओके। सो यू नीड टू टेक utmost care for calculating the waiting time for P1, okay। so P1 waited for how much? 18 मिलीसेकंड, ठीक है। तो प्लस ये हो गया आपका 18 मिलीसेकंड माइनस, ओके। 18 माइनस, यहाँ पर बोलो कितना हुआ? -2 -2 -2 -2, तो बिकम्स 1 कितना? अब बोलो कितना? 8, अब आएगा 8। सो -2 -2 -2 -2, तो -2 -2 -2 -2 becomes -8, ओके। इट बिकम्स माइनस, ये हो गया कैलकुलेशन, ठीक है। अभी आपको कैलकुलेट करेगी तो बताओ मुझे आंसर इसका क्या आता है, चलिए आंसर बताओ। 6 माइनस 2 4 प्लस 11 माइनस 4 4, 11 माइनस 4 कितना आपका? 7, 15 माइनस 6 कितना? 9, 18 माइनस 8 कितना? 10, ठीक है। बोलो मैंने सही कैलकुलेट किया हूँ। द सम इज 30, ओके। सम बिकम्स 30, ये हमारा 30 होगा। डिवाइडेड बाय हाउ मेनी? 3 प्रोसेस है, डिवाइडेड बाय 3 प्रोसेस, तो बाप रे बाप, कुछ और ही निकल गई। 30 और एवरेज निकल जाएगा आपका कितना? 10 मिली सेकेंड, ओके। अरे हम लोग खाली P1 का कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो हम लोग एवरेज क्यों निकाल रहे फिर? सॉरी सॉरी, यू डोंट हैव टू टेक आउट द एवरेज ओवर हियर, ये हम लोग ने खाली P1 का कैलकुलेट किया। तो कितना हो गया आपका ये? 30 मिली सेकेंड ये वेटिंग टाइम हो गया, ठीक है। अरे सही है या नहीं? समझ में आ रहा है आप लोग को क्या कर रहे हैं हम लोग? एवरीवन प्लीज लेट मी नो, समझ में आया आप लोग को? हाउ वी हैव कैलकुलेटेड द वेटिंग टाइम, how we have calculated the waiting time for P1. Till now we have calculated only for P1, okay। so P2 के लिए अलग चक्कर है, ठीक है। तो चलो P2 का स्टार्ट करते हैं, ये हमें 30 लिख देता हूँ हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। चलो यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, इसको भी जरा मैं मर्ज कर लेता हूँ। ओके, नाउ विल स्टार्ट फॉर P2। I'll mark P2 with a quite yellow color, okay। so येलो नहीं, थोड़ा सा अलग कलर है। your P2, sorry, P2, your P2, this is your P2। एग्जाम में आप लोग कर नहीं पाएंगे, इसके लिए आपको बहुत फोकस रखना पड़ेगा अपने चीजों को, अपने प्रोसेस को। अब यहाँ पे तो खाली 3 प्रोसेस है,
यहाँ पर तो मैं मार्क करके इजीली वी कैन अंडरस्टैंड, इजीली वी कैन रिकॉग्नाइज दैट P2 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 एंड P2 आर देयर, ओके, 2 2 2 एंड 1, ओके। बट जहां पर नहीं है वहां पर आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। सो मतलब आप लोग एग्जाम में ऐसे कलर तो नहीं कर सकते, इसके लिए आपको बहुत ध्यान से एक एक प्रोसेस को लेना पड़ेगा, ठीक है। So P2 waited for how much time? Okay, we'll take the first cycle of the P2 when it comes for the first time. P2 waited for 2 milliseconds. So 2 milliseconds. पहला wait किया. Plus second cycle, in second cycle it waited for 8 milliseconds. But 8 minus how much? बोलो 8 minus 2. 8 minus 2 becomes कितना? तो 8 minus 2 becomes 6. Okay, but हम लोग उसको लिखेंगे 8 minus 2, ओके, प्लस ये आपका हो गया सेकेंड साइकिल के लिए। फॉर थर्ड साइकिल ऑफ P2 हाउ मच टाइम इट इज वेटेड, 13 मिलीसेकंड वेटेड, बट 13 minus 2 minus 2, 13 minus 2 minus 2, ओके। सो 13 minus 2 कितना होता है बोलो, 13 minus 4, plus in the fourth cycle let us see it waited for 17 milliseconds, but 17 minus 2, 17 minus 2 minus 2 minus 2, okay, 17 minus 2 minus 2 minus 2, so it becomes minus 6। अरे सही है या नहीं, मैं सही कर रहा हूँ, बताओ जरा मुझे आंसर्स। लोग बोलते नहीं कुछ, आप बोला करो, इंटरेक्शन किया करो। सही है ना, ओके। चलो ये बन गया आपका 2, ओके। 8 minus 2 कितना हो गया 6। मैं इतना सेग्रीगेशन इसके लिए कर रहा हूँ सो दैट आपको हर एक चीज क्लियरली समझ में आए, ठीक है। 13 minus 4 9, 17 minus 6 11, ओके। अब सबका टोटल कितना निकलेगा बोलो, अरे बोलो 28, वेरी गुड। सो 28 मिली सेकेंड। देखो कम टाइम क्वांटम लेने का नुकसान है, ठीक है। ये एग्जांपल्स ले लेके आपको करना इसके लिए है कि सो दैट यू विल आल्सो अंडरस्टैंड व्हाट इज द इम्पैक्ट। दिस इज द मोस्ट कॉमन वाइवा क्वेश्चन, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ टेकिंग टाइम स्लाइस और टाइम क्वांटम हायर, और द वैल्यू इज हायर एंड द लोअर, ठीक है। सो व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ using both the values, okay। So you have seen that if we have considered over here the time quantum is equal to 2 millisecond, then how much you can see the impact, okay। The waiting time we are getting for each and every process is quite big, okay। तो ये हो गया आपका इसके लिए P2 के लिए, okay। Come to the P3 now। इतना कैलकुलेट करने में अगर आप थोड़ा सा एकदम एक्सपर्ट हो जाएंगे ना तो आप इजीली फटाफट कैलकुलेट कर लेंगे। फटाफट कैलकुलेट किए, एक बार गो थ्रू किए और आंसर्स करेक्ट किए, ठीक है। तो ये हो गया आपका 28 मिली सेकेंड, ओके। कम टू P3 नाउ। सो P3 हैज वेटेड ऑफ अराउंड, चलो इसको मैं थोड़ा सा येलो कलर में ले लेता हूँ, एज आई टोल्ड यू। P3 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 और कहीं पे है, P3 और कहीं पर है, P3 P3 को हम लोग खा गए क्या ना, अच्छा ओनली 3 मिली सेकेंड है ना, तो P3 बेचारा शॉर्ट में निपट गया, ठीक है, okay। In the first cycle of P3 it has waited for around 4 milliseconds, ठीक है। So I will write it down like over here as I written earlier, 4 plus 4 millisecond waited, plus in the second cycle how much time it has waited, 10 millisecond, but minus 2, okay। So 10 minus 2, तो ये बहुत शॉर्ट में निपट गया इसका काम, 10 minus 2, ओके। और कहीं पर आया है, ये कहीं पर नहीं है, ठीक है। देखो कम बार आया इसके लिए कम टाइम मिल जाए, इसलिए कम टाइम वेट किया। उन लोग बार बार आए बिकॉज दे वर हैविंग लार्जर बर्स्ट टाइम, ओके। इवन P2 वाज हैविंग 7 मिली सेकेंड ऑफ बर्स्ट टाइम, तो वहां पर हमारा कितनी बार गया, तो कैलकुलेशन करो फटाफट। 4 प्लस 10 माइनस 2 8, 4 8 और 4 कितना हो गया 12, ओके। सो इट बिकम्स 12। सो यहाँ पर हमारा आ गया 12, ओके। कैलकुलेट कर लो भाई साहब, ये बन गया आपका द एवरेज इज 23.33 मिली सेकेंड, 23.33 मिली सेकेंड, 23.3 मिली सेकेंड। अब थोड़ा सा जरा अंदाजा लगाओ कि कितना टाइम जा रहा है, कितना टाइम जा रहा है हर एक के लिए वेटिंग टाइम। सो यू कैन कंपेयर ओवर हियर ओनली के यूजिंग FCFS एंड यूजिंग RR, ठीक है।
यहाँ पर आर का जो एक पैरामीटर दैट इज टाइम क्वांटम ऑल्सो, सो टाइम क्वांटम कम लिए ज्यादा लिए तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है। तो आप बताओ मुझे टर्न अराउंड टाइम, how much they have, what is the burst time and what is the time of they have waited, okay। so दोनों को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका टर्न अराउंड टाइम कितना जाता है, 30 प्लस 19, बोलो कितना जल्दी, 49, सो ये हो गया 49, टर्न अराउंड टाइम फॉर P1 इज 49, बहुत ज्यादा है, ओके, तो उसने वेट भी तो किया है ना, 30 मिली सेकंड तो खाली वेट किया है और 19 मिली सेकंड उसका बर्स्ट टाइम है, सो कलेक्टिवली इट बिकम्स 49 मिली सेकंड। इससे राउंड रॉबिन के अंदर आपका P2 का what will be the turnaround time, that is waiting time is 28 millisecond plus 7, 28 plus 7 how much, बताओ जल्दी से, अरे बताओ जल्दी से, 28 plus 7, बहुत आप लोग, 35 मिलीसेकंड राइट। उसके बाद में योर फॉर P3 12 मिलीसेकंड, इट वेटेड फॉर 12 मिलीसेकंड प्लस 3 मिलीसेकंड इसका बर्स्ट टाइम है, सो 12 प्लस 3 हाउ मच, 15 मिलीसेकंड इज द टर्न अराउंड टाइम फॉर राउंड रॉबिन, ओके। सो चलो कैलकुलेट करते हैं इसका एवरेज, द एवरेज इज अराउंड 33, ओके, 33 मिलीसेकंड, 33 मिलीसेकंड, ओके। तो अब अंदाजा लगाओ आप दोनों के बीच में कितना कंपैरिजन है, ठीक है। So it was for calculation of P1, it was for calculation of P2, it was for calculation of P3, okay। तो ये जो हम लोग ने किया है ये दिस इज फॉर राउंड रॉबिन, ठीक है, इसको मैं मार्क कर रहा हूँ सो दैट इट विल कम इन योर रिकॉर्डिंग आल्सो एंड यू कैन रेफर इट लेटर, ओके। सो दिस इज फॉर राउंड रॉबिन, ओके, यहाँ मेंशन कर रहा हूँ। और हमारा एफसीएफएस का तो इजीली कैलकुलेट हो गया था, ठीक है। सो दिस इज द वन क्वेश्चन, बोलने के लिए कितना सिंपल क्वेश्चन था ये, अरे ओनली 3 प्रोसेसेस आर देयर, P1 P2 P3, 1973, क्या करना है, एफसीएफएस राउंड रॉबिन। इतना टाइम हम लोग को लास्ट वाले क्वेश्चन के लिए भी लगा था, अगर आपको याद होगा तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 भी जो हमारा था, द वन व्हिच वी हैव सॉल्व्ड यस्टरडे। सो हाँ भाई बोलो फरहान, अलग आ रहा है, बताओ इसमें क्या चेंजेस है, बताओ आपके सामने है, अलग कहाँ पे अलग आ रहा है, एवरेज टर्न अराउंड टाइम इज 19.3 मिली सेकेंड, किसका, राउंड रॉबिन का, अच्छा। कहाँ पर हम लोग ने की मिस्टेक बताओ, वेटिंग टाइम में गलत कैलकुलेशन हुआ, वेटिंग टाइम इन राउंड रॉबिन ना, राउंड रॉबिन की बात कर रहे हैं, ओके। चलो राउंड रॉबिन का एक बार देखते हैं, P1 10 मिली सेकेंड, P2 11, P3 8, कैसे है आपका, जरा प्लीज स्विच ऑन योर माइक एंड देन प्लीज लेट मी नो, माइक ऑन करके बोलो। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, हाँ बोलो। सर वो वेटिंग टाइम में जब हमने ये वापस कैलकुलेट करे तो अपन ने बार बार मतलब जो अपन ने कैलकुलेट कर चुके हैं उसको भी अपन ने ऐड करते गए वेटिंग टाइम में। राइट 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 राइट, तो जो जो उसका बर्स्ट टाइम था वो भी अपने कैलकुलेट कर लिए, मतलब ना, जो बर्स्ट टाइम था वो भी हम लोग ने कैलकुलेट किया है। सर जैसे आपने 11-4 करे वहाँ पे 11-8 आएगा क्योंकि जो 2 से लेके 6 तक वाला है तो वो 6-2 में कैलकुलेट हो गया ना वो। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, रुको हाँ एक बार वापस से मैं कैलकुलेट करता हूँ। फॉर P1, ओके, ये P1 काम फॉर एग्जीक्यूशन हो गई है, सो P1 का द फर्स्ट इज 0 मिली सेकेंड प्लस इन द सेकेंड साइकिल इट विल कम, इट विल सेकेंड साइकिल इट विल कम, सो
P2 वेटेड फॉर 6 मिली सेकेंड, बट उन्होंने -2 किया है ना, -2 किया है, बट इतना तो वेट करना ही पड़ा इसको, 2 to 4। अच्छा, नहीं सही तो है ना। सर 6 - 6 - 2 करेंगे तो उसके बाद ऐड कर देना, तो फिर वापस से कैसे आएगा? 11 - 4, 11 - चलो 8 होगा। 11 पे आते हैं, एक काम करते हैं, 11 पे आते हैं, ठीक है, तो ये वाले सेक्शन पे आते हैं। सो इन द थर्ड साइकिल फॉर P1, इट वेटेड अराउंड 11 मिली सेकेंड। 11 - 2, -2 कर दो, वो ऑलरेडी वेट कर चुका सर है। -2 करेंगे तो ऑलरेडी हो चुका है ना 6 - 2 में कैलकुलेट। ओके 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 ओके, यहाँ पर हम लोग ने की मिस्टेक की। सो P1 ने 11 मिली सेकेंड वेट किया है, और नहीं सर, सर वो बोल रहा है कि ऐसा कि 8 में एग्जीक्यूट हो गया, तो 8 के बाद फिर वो 4 सेकंड वेट किया है 11 तक, तो आपने वहां पे वो 11 - 4 कर दिया, तो मतलब कि वो वापस से अब पीछे का जो वेटिंग है वो वापस हम कंसीडर कर रहे हैं, ये बोल रहा था। राइट 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 राइट, यहाँ पर हम लोग से मिस्टेक हुई। तो P1 यहाँ पर हम लोग हमारा थर्ड साइकिल में आया है। सो इन दैट थर्ड साइकिल व्हाट हैपेंस, हम लोगों ने कैलकुलेट किया 11 मिली सेकेंड तो वेट हुआ यहाँ पर, फॉर एग्जांपल ये वाले साइकिल ने 11 मिली सेकेंड वेट किया है, बट ऑल्सो वेटेड फॉर, ये मतलब इतना ही वेट किया खाली, आप बोल रहे हैं मतलब इसको कंसिडर मत करो ऐसे। हाँ सर।
Hello everyone. Am I audible? Okay, अभी आवाज आ रही है. Actually, I got disconnected. हाँ, आप लोगों ने जो पॉइंट बोला दैट इज करेक्ट. ओके, अभी नेट आ गया हो तो मैं आपको बता दूं. 2 मिनट में नेट आ जाएगा. एक्चुअली वाईफाई का बटन किसने बंद कर दिया था. ओके, सो वो राइट है. जैसे फरहान बता रहा था तो इट इज करेक्ट. ओके, आपका 6 - 2 नहीं बल्कि 4 आना चाहिए. ओके, सो आपको अभी आ जाएगा तो मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ. द मैथड इज करेक्ट. तो इससे जो हमारा टाइमिंग है वो हमारा कम हो जाएगा. जो हमारा वेटिंग टाइम आ रहा है, जो हमारा टर्न अराउंड टाइम आ रहा है, वो कम हो जाएगा. ठीक है, स्टिल वेटिंग. आपको मैं और एक एग्जांपल भी दूंगा. देखो, आपने कैलकुलेट करके देना. इसको आप लोग नोट डाउन कर लेना. फॉर पी आपको मैं 3 सेट ऑफ प्रोसेस देता हूँ, P1, P2, P3, 15, 7 एंड 5. मैं आप लोग को एक फोटो भेजूंगा. सो उसके लिए आपको राउंड रॉबिन के लिए करना है फॉर 2 मिली सेकेंड. ओके, और मुझे आंसर्स बताओ बिकॉज आई हैव द आंसर इन फ्रंट ऑफ मी. बट आप लोग आंसर इसका मुझे बताओ. ओके, if someone has a laptop, if someone is on laptop, then can you please stop the recording because right now I'm from the mobile, so I cannot